Morning, student. On Saturday, I taught you about the midpoint theorem. Midpoint theorem. Studied the midpoint theorem. Midpoint theorem आपको हमने बताया था, ठीक है. स्टडी मिड थ्योरम में आपने पढ़ा कि इन ए ट्रायंगल if you join the midpoint of two side of triangle, then this line segment is parallel to third side and half of the third side this line segment is. And this converse of this, if you draw the line which is passes through the midpoint, and parallel to third side this side, then this bisect the other side also this side. मतलब ये भी मिड पॉइंट को टच करेगा. दो थ्योरम्स आपको ऑन सैटरडे आई टॉट यू, and some theorems also we can read in this exercise related to midpoint theorem. If you go through the another help book, and this theorem is called the intercept theorem. What is the intercept theorem? Intercept theorem said if three lines are parallel, L, M and N, and one transversal line intersect it equally, okay, then another transversal also intersect equally. Means if this transversal line intersect these three parallel line equally, मतलब this equal to this, okay. Suppose that ABC means AB equal to AC, AB equal to AC, AB equal to AC, then this portion is also equal to this portion, ठीक है. ये भी एक थ्योरम है जिसको इस्तेमाल किया जाएगा. अब कम एंड लेट्स स्टार्ट द सॉल्व द सम क्वेश्चन एंड थ्योरम रिलेटेड टू दिस chapter, this exercise. See the first question. See the here figure also given. In this figure, this is the simply quadrilateral ABCD, and PQRS are the midpoint. ABCD this is in diagonal, and this AC is diagonal. So prove that SR is parallel to AC. Simply SR is parallel to AC. तो ये midpoint theorem से ऑनलाइन में आप लिख देंगे कि since S and R are the midpoint of the two side of triangle DAC, ध्यान से देखना, इन दोनों का मिड पॉइंट है, that's why this line is parallel to third side, यानी SR parallel to AC. Simply, and SR is half of the AC by the midpoint theorem. आप वहाँ लिख दोगे by the midpoint theorem. You are not to prove that. अब आपको हर जगह प्रूफ नहीं करना है, बस लिख देना है कि by midpoint theorem, since S and R are midpoint of triangle DAC, so SR is parallel to AC and SR is half of the AC. इसी तरह आप PQ इक्वल टू SR, PQ इक्वल टू SR कैसे पूछ करोगे? तो SR इज हाफ ऑफ AC एंड PQ इज आल्सो हाफ ऑफ द AC इन ट्रायंगल दिस, इधर में आ जाओगे तो दिस इक्वल टू दिस प्रूफ हो जाएगा. सिंपली वेरी इजी. तो दिस इज पैरेलल टू दिस हो जाएगा, फिर इस साइड से आ जाओगे एंड दिस इज इक्वल टू भी दिस हो गया. तो इफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, देन दिस इज आल्सो पैरेलल होगा. आप पैरेललोग्राम भी प्रूफ कर सकते हो क्योंकि एसआर जो है वो पैरेलल प्रूफ हो गया और इक्वल पीक्यू का प्रूफ हो गया. कैसे होगा? तो ट्रायंगल लेकर DAC ले लोगे तो एसआर पैरेलल टू AC हो जाएगा और एसआर इज हाफ ऑफ द AC हो जाएगा. सिमिलरली
सिमिलरली आपका पी क्यू जो है वो ए सी के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि पी एंड क्यू जो है मिड पॉइंट है इस ट्रायंगल में, तो पी क्यू इज हाफ ऑफ दिस हो जाएगा एंड एस आर इज हाफ ऑफ दिस हो जाएगा। तो एस आर और पी क्यू पैरेलल एंड इक्वल हो जाएगा। सो एस पी क्यू आर पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लो। अब ये सारे थ्योरम्स भी आपका बहुत आसान है, तो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ द हेल्प बुक लाइक आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा। आप थोड़ा पढ़ोगे, देखोगे प्रूफ, तो बहुत इजीली समझ लोगे। और उसके बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाओ। एनसीईआरटी में तो जो है वो तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ प्रैक्टिस के लिए अनदर क्वेश्चन भी बनाइए आप। और थोड़ा सा जहाँ डाउट हो उसको जेरोक्स करके फ़ोटो करके व्हाट्सएप पर डालिए, मैं जहाँ प्रॉब्लम हुआ उसको क्लियर करूँगा। See the suppose that you have to prove the second question. ABCD is a rhombus and PQR is the midpoint of the ABCDs so that the quadrilateral PQ। अब देखिए आपको पूरा प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। अब किसी क्वाड्रिलेटरल को ये कह रहा है कि ABCD is your rhombus and midpoint PQRS is midpoint। this P Q R S, this is, you have to prove that PQRS is an rectangle। ये रेक्टेंगल है आपका, ये प्रूव करना है। तो अब आपको किसी क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूव करना है, मीन्स आप क्या प्रूव कर सकते हो, ईच एंगल 90 डिग्री। ये बहुत पॉपुलर है, पहले से भी जानते हो कि ईच एंगल अगर 90 प्रूव करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल प्रूफ होता है। तो ईच एंगल आप 90 कैसे प्रूफ करोगे? अगर प्रूव कर सकते हो तो अच्छी बात है, कर लो। लेकिन और भी तरीका है, और बड़ा परफेक्ट तरीका है कि आपको पता है कि दो क्वाड्रिलेटरल है पैरेललोग्राम जिसका डायगोनल इक्वल होता है, वो कौन है? रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, एंड स्क्वायर इज आल्सो रेक्टेंगल, ईच एंगल 90 डिग्री। तो अगर आप डायगोनल इक्वल प्रूव कर देते हो तो भी रेक्टेंगल प्रूव कर देते हो। तो डायगोनल आइए प्रूव करते हैं कैसे। join this SR। okay, अब see about the quadrilateral ABQS। ABQS, थोड़ा सा इसके बारे में सोचिए। ठीक है, देखिए AS के बारे में छोड़िए, AS इक्वल टू BQ, AS equal to BQ, AS equal to BQ and AS parallel to BQ। How? तो AD equal to BC because this is the side of the rhombus। तो rhombus के तो all side equal है, तो AS equal to BQ, क्योंकि मिड पॉइंट है ये, एस एंड क्यू मिड पॉइंट है, तो ए इज इक्वल टू बी क्यू एंड ए इज पैरेलल टू बी क्यू। सो ए बी क्यू एस इज पैरेललोग्राम, ए बी क्यू एस इज पैरेललोग्राम, दिस इज पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अब ये पैरेललोग्राम हो गया, इसका मतलब ए बी इक्वल टू एस की हो गया, ए बी इक्वल टू एस की हो गया, दिस ए बी इज इक्वल टू एस क्यू एंड पैरेलल, और ए बी इक्वल टू। और सिमिलरली आप ये भी प्रूव कर सकते हो, सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो कि इसी तरह आप प्रूव कर सकते हो, और भी उसका अपोजिट दूसरा डायगोनल भी प्रूव कर सकते हैं। ये डायगोनल ज्वाइन कर देना, फिर उसी तरह आप ए बी सी डी हो जाएगा आपका, और फिर इसी तरह आप पी
QRS, इस पर जो है PR को इसके पैरेललोग्राम इसको प्रूव कर देना है। ठीक है, तो दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा, यानी PD ये दिस इक्वल टू दिस एंड पैरेलल हो जाएगा और आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपका ये पैरेललोग्राम प्रूफ हो जाएगा। तो AD दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपका ये देखिए पैरेललोग्राम हो जाएगा ये, और ठीक है और ये साइड जो है इसके इक्वल है, तो इसी तरह ये डायगोनल भी इसके इक्वल हो जाएगा, दोनों डायगोनल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका रेक्टेंगल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप कर सकते हो, और भी देखना और प्रॉब्लम होगा तो करना। थैंक यू।